आज वर्चुअल पोते पर स्वागत है। तालियों के साथ बच्चे अभिनंदन करते हैं। बोलिए, करिए क्लैप फटाफट। बोलना पड़ेगा ना मुझे, तालियों की गूंज के साथ आपका स्वागत। 10th क्लास बिगिन। प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री सुनील कुमार जी, शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस वर्चुअल मंच पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। आप सबका केंद्रीय विद्यालय अमरकोट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। 10th क्लास सिर्फ क्लैप करेगी। तालियों के बीच आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि आज हम खेल जगत की एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ हमारे स्कूल के कार्यक्रम भी होंगे और आप लोग वर्चुअली भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं। अब मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वह खेलों का महत्व बताते हुए बच्चों को संबोधित करें। ओवर टू प्रिंसिपल सर। Dear teachers and dear students, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Please mute yourself. Morning, sir. Morning, mute yourself. Dear students, as we all know today, we are gathered here just to celebrate the National Sports Day. This day is celebrated to commemorate in the memory of Major Dhyan Chand. However, on 29th of August, we used to celebrate the National Sports Day. But you all know, due to some restrictions due to COVID, we have managed to just organize the day by today itself. And in today's webinar, we are going to witness the contributions made by various athletes in the field of sports. First of all, we will meet with we will have a virtual meet with a para athlete, Mr. Vikas Dagar, and then we will interact with our renowned hockey player, Mr. Sanjay Kumar Beer. The importance of sports is very vast in our daily life. As we all know, sports makes us physically, emotionally, mentally stable. At the same time, sports makes us to learn how to work in a team, how to achieve our goals within a stipulated time, that is with full strength. Also, this is very important to mention that nowadays
the future of sports in this particular state is not a praiseworthy one, because Punjab always remained a state of sports. This was the only state from where we have bagged a number of medals at all possible levels, that is national, international, with the help of our players. So at on this occasion of this sports day, we have to take a pledge that we will participate. We will try to means keep ourselves involved sports too, along with our studies. We have to take pledge that we will make sports as an integral part of our life, so that we may be physically strong as well. We may also spread a message for the society to keep to remain away from the various drugs, that is illicit practices like drugs, etc. So I would like to congratulate you all my students of Kendriya Vidyalaya Amarkot, and our parents and my staff members for this celebration of National Sports Day. Thank you all. Ma'am, please continue. धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आपसे अनुमति चाहूंगी। थैंक यू सर। प्लीज। थैंक यू सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन उनका जन्मदिन होता है। आप जानते हैं वो हॉकी के जादूगर थे। तो आइए अभी उनकी एक पीपीटी देखते हैं। सारे अपनी अपनी बड़ी मर्जी करते हैं। क्या किया आपने? मैंने तो ये क्या, ये अच्छा मैम चला रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसकी आवाज़ ही बंद की है। तो वो इको हो रही थी ना, कम की थी। ये मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा दी हुई है साथ में, इसीलिए थोड़ी तो आवाज़ आनी चाहिए। मैं कुछ नहीं करता। उनकी पीपीटी देखें और उनके बारे में हम कुछ जानें। इनका जीवन परिचय है कि इनका वास्तविक नाम जो था वो ध्यान सिंह था, और इतना अच्छा खेलते थे कि लोग इनको धीरे धीरे चांद कहने लगे। तो इनके नाम के पीछे चंद लग गया, तो तब से इनको ध्यानचंद कहा जाने लगा। ये उनका हॉकी का कैरियर है कि ऐसी हॉकी खेलते थे कि लोग शक करने लगते थे कि इनकी हॉकी को कहीं चुंबक तो नहीं लगी हुई। 2-3 बार इनकी जो हॉकी का प्रयोगशाला में अध्ययन भी किया गया और उनको तोड़कर भी देखा गया कि कहीं चुंबक है, क्योंकि गेंद तो इनकी हॉकी से ऐसे चिपकी रहती थी कि जैसे मतलब कोई चुंबक से चिपकी रहती है। तो इन्होंने अपने हॉकी कैरियर में लगभग 1000 गोल किए, जिसमें 400 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किए गए थे। उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। 1928 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने 14 गोल किए। बर्लिन ओलंपिक्स में उन्होंने सर्वाधिक गोल किए। 1935 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान 43 मैचों में 201 गोल बनाने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इनके जीवन की खेलते हुए कुछ झलकी देखें और प्रेरणा लें।
ये मैच हो रहा है। इस वीडियो के चलते चलते मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ कि हमारे बीच जो आज के व्यक्तित्व हैं वो ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री संजय कुमार वीर जी किसी भी पल हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए हॉकी की शुरुआत कैसे की इन्होंने। पीपीटी आपके सामने है। हमारे मेहमान आज के मुख्य अतिथि श्री संजय वीर जी हमसे ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार सर। केंद्रीय विद्यालय अमरकोट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हॉकी के प्लेयर हैं। आपने इंडियन एयरलाइन रेलवे के लिए बहुत सारे मैच खेले हैं और आज हम आपको यहाँ देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे सर का एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। संजय कुमार जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हम सब प्रेरणा लेंगे। सर हमारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी बच्चे आपको देख रहे हैं। तो सर आप बच्चों को संबोधित करिए, इनको प्रेरित करिए। ओवर टू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आपको? जी सर आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। जैसा कि मैम ने बताया अभी आपको, और मैं बेसिकली स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ही आपसे बात करूँगा और इसके बारे में थोड़ा आपको बताना भी चाहूँगा कि हाउ स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट फॉर किड्स यंगर और एल्डर्स किसी के लिए भी। तो बेसिकली खिलाड़ी होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और खिलाड़ी बनना कभी भी एक ईजी वर्क नहीं रहा किसी के लिए भी। जो भी स्पोर्ट्समैन किसी भी लेवल को अचीव करते हैं, रिसेंटली हमें अभी देखा जैसे टोक्यो ओलंपिक में हमारे हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे मेडल्स अचीव किए और बहुत नाम हमारा हिंदुस्तान का हुआ है, जिसमें आपने हॉकी में भी देखा होगा कि 41 ईयर्स के बाद इंडियन हॉकी टीम ने मेडल अचीव किया, ब्रोंज मेडल। और उसके बाद में भी नीरज चोपड़ा ने, और ऐसे ही वेट लिफ्टिंग में और बहुत सारे मेडल्स और भी हमने हासिल किए। खिलाड़ी के
के बारे में मैं आपको जस्ट और ब्रीफली बताना जरूर चाहूँगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स करें और उसकी इम्पोर्टेंस का आपको बेनिफिट जो है वो कभी भी ले सकें। खिलाड़ी, जब एक इंसान खिलाड़ी बनने के लिए अपने आप में शुरुआत करता है, जब उसकी शुरुआत होती है तो कभी भी वो एक ईजी लाइफ से नहीं होती। खिलाड़ी जब शुरुआत करता है तो बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत सारी हार्ड वर्क के साथ उसको अपनी लाइफ में आगे उस वे उसको उस पाथ पे को जो है वो चलना पड़ता है। तो लाइफ में कई तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, बहुत टफ लाइफ, और जिसमें देखिए एक खिलाड़ी जब बढ़ता है ना आगे, उसमें सेक्रीफाइसेस अकेले उस खिलाड़ी के नहीं होते कभी, उसमें उसकी फैमिली में उतने सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत लंबे समय के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। तो उस बीच में घर के परिवार की एक सोच रहती है कि हमारे बच्चे जब घर से बाहर इतनी दूर जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो नेचुरली पेरेंट्स अपने हेड पर बहुत सारी जो है वो वरीड होते हैं। तो ये बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस एक खिलाड़ी के साथ साथ उसकी फैमिली के भी होते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, सारे जो है वो सारे इस चीज़ को एडजस्टमेंट के लेवल पर करते हैं। खिलाड़ी की शुरुआत नेचुरली स्कूल लेवल से होती है और धीरे धीरे कॉलेज बढ़ते जाते हैं। कॉलेज के साथ फिर आगे आप जब इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन करते हो, आप अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, तो इस जर्नी के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे हार्डवर्क से, बहुत सारी स्ट्रगल से होते होकर चलना पड़ता है। उस बीच उस सफ़र के दौरान आपको कई बार बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारी चोटें का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी एक ऐसी प्रेरणा स्रोत होता है किसी के लिए कि उसने ये सब चीज़ें अपने ऊपर ली होती हैं। जब वो खेलते हैं ग्राउंड के अंदर तो बहुत सारी इंजरीज उनके ऊपर आती हैं और सडन इंजरीज होती हैं। तो कई बार ऐसी इंजरीज खिलाड़ी की लाइफ में आ जाती हैं जिससे कि वो एक बार डिस्करेज हो जाती है लाइफ कि यार अब मैं ऐसी इंजरी हो गई है तो शायद दोबारा खेल नहीं पाऊंगा। बट उस इंजरी होने के बाद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी साथ में जो सराउंडिंग पीपल्स होते हैं वो ऑलवेज बड़े सेल्फ रिलीवेबल होते हैं, बहुत डिपेंडेंट होते हैं, ऑलवेज अपने सेल्फ डिपेंडेंट और बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस जर्नी के दौरान ये लोग और आप कोई भी साथ में इंकरेज करने वाले जो स्पेशली वो जो पीपल्स होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान आपकी लाइफ में जो है वो रहता है। तो मैं अपने ऊपर भी इसी जगह सोचूं तो मेरी थ्रू ऑफ द जर्नी फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग ग्रासरूट लेवल से लेके आज भगवान की कृपा से जिस लेवल पर हम हैं उस तक पहुँचने में बहुत सारी जो मैंने अभी आपको बातें बताई, ये सब चीज़ों से हम कोच होकर गए। उस बीच में हमने वो सारी तकरीबन बहुत सारी जगह पर खेलते हुए इंजरीज का आना और कई बार ऐसे डीमोटिवेट हो जाना कि हम बिल्कुल नहीं खेल पाते थे कई जगह पर आकर। बट आपको खुद उस जगह में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना होता है और उस तरह तैयार करना होता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी गई है तो उस चीज़ से आपको कैसे निकलना है। क्योंकि साइकोलॉजिकली कोई भी इंसान वो अगर उसके ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस और थोड़ा सा डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी इंसान को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को इनकरेज करना और ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क, कि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और हार्ड वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये चीज़ें बड़ी लॉयल्टी और फेथफुलनेस से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो आगे आने की हम एक अच्छी कामना कर सकते हैं। और इवन कल को आप भी में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, और इवन मैं ये मैसेज सबको दूंगा कि आप सब जितने बच्चे स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, विदाउट हेल्थ ना तो हम अच्छे से स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ना ही अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं। तो सारा ध्यान स्टडी देने के साथ साथ
हमें अपनी स्पोर्ट्स पर, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर भी देना उतना इम्पोर्टेंट है। अच्छी हेल्थ हमेशा आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी दे सकती है। तो साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास स्टडी के साथ साथ आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके टीचर्स कैसे आपको गाइड करते हैं, क्योंकि टीचर्स एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो आपको स्कूल में सिखाते हैं। मैं ऑलवेज बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि टीचर्स के होने पर ही आज हम इस लेवल पर जो आते हैं, ये अध्यापक का ही एक बहुत बड़ा रोल। स्कूल के टीचर्स आपकी लाइफ में हमारे गुरु कितने टीचर्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट ऑलवेज करें और जो भी ये मार्गदर्शक आपको देते हैं उनके ऊपर चलें। और साथ साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ और अपने शरीर के बारे में भी उतना ही ध्यान दें कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना कि मोबाइल और सोशल मीडिया या जितनी एक्टिविटीज़ हम फ़ोन वगैरह पे या टीवी वगैरह पर ज़्यादा सुनते हैं या देखते हैं, जरूर देखिए बट एक लिमिट के दौरान। उससे ज़्यादा अगर देखेंगे तो उसके इफेक्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर जब आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान आगे जाके हमें देखना पड़ता है। तो ट्राई करें कि लेस मोबाइल जो है उसका यूज़ करें, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए। बट अपने पूरे दिन के एक शेड्यूल के अंदर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो उसको आगे बढ़ाएं। लाए वीडियो वीडियो लाए हो तो मन को करे प्रेजेंट कर दे। ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮ ओवर टू सीता मैम। थैंक यू सर। अब मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि का धन्यवाद करें। ओवर टू प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। First of all, I would like to welcome you in this webinar, and at the same time, I am also feeling very much thankful that at a short notice you managed for the me sparing this time to interact with our children. सर की ये बड़ी एक खास बात रही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत इनका टाइम ये निकाल ही लेते हैं। सर का एक बड़ा रिनाउंड नाम है, जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया, सर का इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स के लिए रहा हुआ है। और सबसे अच्छी बात आज की ये रही कि सर अपने ऑफिस आवर्स में से भी थोड़ा सा टाइम, जैसे ही सर को पता चला कि मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना है, उन्होंने एक बार भी मील जो है अपने अपॉइंटमेंट्स को साइड में रख के सबसे पहले बड़ी इन्होंने खुशी जाहिर की एकदम से कि मैं बच्चों से तो मैं बात जरूर करूँगा उससे रिलेटेड मामला है। और बहुत अच्छी बातें बच्चों आप लोगों को सर ने बताई है, और अगर हम इन चीज़ों को लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारे लिए और हमारे उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। Once again, sir, I would like to thank you for sparing your valuable time of yours. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। 10th क्लास के बच्चे तालियों के साथ धन्यवाद देंगे सर को। धन्यवाद सर, आपका जो व्यक्तित्व है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके मैम, ओके। तो बच्चों, ऐसे ही व्यक्तित्व से हम लोग हर बार मिलते हैं, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है, और हम अपनी लाइफ में हमेशा सफल रहते हैं। तो हमारे जो इस कार्यक्रम में आगे के जो कार्यक्रम है, जिसमें लवप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो खेलों के महत्व के बारे में और साथ ही साथ कोविड-19 स्टे एट होम के बारे में उनका टॉपिक है, तो हमारे साथ अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। ओवर टू लवप्रीत, और इसके बाद श्वेता तैयार रहेंगे। ओवर टू लवप्रीत। आदरणीय प्राचार्य महोदय,
आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं पुष्प पल्लवित कलियों सम्मान मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं लवप्रीत कौर कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके समक्ष कोरोना संक्रमण के दौरान घर में रहते हुए स्वास्थ्य के विषय में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा था। भारत में भी लॉकडाउन पूरी सख्ती से किया गया था। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे और कोरोना संकट के इस दौर में लोगों ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय में सहभागिता करके इस मुश्किल समय में अपना पूरा सहयोग दिया है। इन दिनों में लोगों की दिनचर्या में भी बदले हैं और ऐसे में खुद को फिट रखना बहुत ही जरूरी था। अपने फिटनेस को लेकर जागरूक लोगों ने अपने खान पान से लेकर व्यायाम तक का ध्यान रखा। ऐसे में ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग के चलन ने लोगों की बहुत मदद की है। इस दौरान लोगों ने घरों में रहकर ही अपने फिटनेस का पूरा ध्यान दिया है। जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कैसे बदल गई है लोगों की दिनचर्या और उनकी लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव आए हैं। देश में हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस का उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग योग से लेकर जिम तक और एक्सरसाइज में अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं और अपने खान पान का भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं अपने में। जुम्बा, एरोबिक्स और डांस क्लासेस लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया था। लॉकडाउन के इन मुश्किल दिनों में ये तमाम क्लासेस बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस दिक्कत को दूर कर रहे थे। कई सारे योगा क्लासेस और जिम संस्थान फेसबुक से लेकर यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव हो रहे थे और अपनी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। जिम और योगा लाइव के अलावा भी ऐसे कई उदाहरण आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लॉकडाउन के मुश्किल दिनों में घरों में रहने के कारण लोगों का रूटीन पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहाँ लोग सुबह या शाम में जिम जाया करते थे, वह अब हर रोजाना सुबह उठकर एक्सरसाइज या योग करते हैं। जिम, योगा के साथ ही लोग अपनी मेडिटेशन का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इन दिनों इंटरनेट पर फिटनेस टिप्स भी खूब सर्च किए जा रहे हैं। फिट रहने के लिए क्या खाना उचित है, लोग इस बात का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। सभी लोगों ने मिलकर इस मुश्किल समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसमें भी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम फिट हैं तभी हम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए योग हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बता चुके हैं कि लॉकडाउन के दौरान योग, व्यायाम हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है ही, इन क्रियाकलापों में समय देना और व्यस्त रहना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। बहुत अच्छा। 10th क्लास क्लैप करेगी लवलीन के लिए। 10th क्लास, तालियों की ड्यूटी आपको दे रखी है मैंने। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो अगले प्रतिभागी हैं हमारी श्वेता। ओवर टू श्वेता। A very good morning to all, to the respected principal, sir, teachers, and my dear friends. Myself is Shweta Kumari from class 10. I am here today to speak a few words about और दोस्तों वीडियो तैयार है कि नहीं? The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting on more than one each. सामने कहने तुसी चला दो स्क्रीन Hard for a प्रेजेंट lot करके। of us to do कौन sort of करे? exercise we normally do. It's even यार hard के कह के आओ फटाफट, कोई छाड़ दो। to do a lot of physical exercise, but at a time like this, it is very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. WHO's Be Active campaign some fun at the same time. Regular physical activity benefits both the body and mind. Regular physical activity can help give our days a routine and be a way to stay in contact mental health, reducing the risk of depression, mental health, and improve overall feeling. While on lockdown, physical activity needs to be maintained as it is extremely beneficial to body,
and mind. Exercise also helps to boost immunity. You can walk for a short period such as 10 minutes at a time or practice yoga routine or interval training. While gym and group classes may be out, you can still cycle, hike or walk. There are many things you can do even without such as yoga and exercise. Staying active is always important for exercise. If you are allowed to exercise outdoors, keep a distance of 1 meter from others. During the COVID-19 pandemic, it is even more important for all people to be physically active. Physical and mental well-being are tremendously taxed right now, and maintaining some routine of physical fitness can go a long way towards helping both. Less than 60 minutes in duration may also play a role in immune system health. However, the virus does seem to greatly affect the respiratory system. This information should make us consider the potential protective effect continue. Regular fitness routine might provide us and responded without our changing lifestyle owing to the coronavirus pandemic. This age-old exercise has benefits that are far-reaching. There are many benefits of physical activities. These are some healthy growth and development, reduce the risk of disease in later life, help in development of fundamental routines. The WHO guidelines stress that any amount of physical activity is better than none. A study conducted in 2020 found a significant reduction in the likelihood of developing severe pain against infected patients who had constantly made the recommended physical activity guidelines in the preceding couple of years. Furthermore, COVID-19 patients who had engaged in less physical activity than recommended has lesser risk of developing severe disease. Proper nutrition and hydration are vital. People who eat are well balanced tend to be healthier with stronger immune and longer risk of chronic illness and infections. During this difficult time, it is important to continue to look after your physical and mental health. There will be no out only help you in the long term. It will also help you fight against COVID-19. Thank you. वेरी गुड बेटा। श्वेता, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो बच्चों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो इस कहावत को चरितार्थ किया है विकास डागर जी ने, जिनका मैसेज आपके लिए प्रिंसिपल सर लाए हैं, वो आपको अभी सुनाया जाएगा। मैं तब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो शारीरिक अक्षमताओं, इनकी जो मतलब शारीरिक था, स्वास्थ्य था, वो आम लोगों से थोड़ा सा वीक है। पैरा गेम्स ये खेलते हैं और इन्होंने लगभग, देखते जाइए, सरकार के मिशन स्कीम में इनका नाम जो है चयनित किया गया है। ये देखिए, इनके बारे में जो खेल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, उसके बाद हम इनका मैसेज सुनते हैं। दिल्ली के एक गांव में जन्मे थे ये। उनकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय से ही उन्होंने रनिंग और जंपिंग जैसे खेलों को चुना और कई मेडल जीते हैं। वह 18 इंटरनेशनल, 12 नेशनल और 10 स्टेट लेवल के मेडल जीत चुके हैं। फिर अभी वो एमसीडी में शिक्षक भी हैं, साथ ही साथ वो बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। और नेशनल पैरा गेम्स में ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का कई जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें चीन, कोरिया, दुबई, पोलैंड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। 2016 में इन्हें राजीव गांधी राज्य स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला था और अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अब मैं सुमन सर से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके श्री विकास डागर जी का मैसेज बच्चों को सुनाएं। प्लेटफॉर्म पे आप सभी से डिस्कस करूंगा
अगेन पूरे स्कूल मैनेजमेंट का थैंक यू सो मच। और सुनील सर, आपसे पर्सनल थैंक्स बोलता हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। पुनः आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है मैंने जो आपको सजेशंस दिए हैं उनको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम हमारा विराम लेगा, तो कुछ क्विज आपके लिए रखे गए हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखे गए हैं। मतलब पूरा जो खेल दिवस है आज मनाया जा रहा है। तो चलिए हम अरुण सर से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सर कि धन्यवाद करें और प्रोग्राम को आगे की ओर ले जाएं। ओवर टू अरुण सर। धन्यवाद मैम। बच्चों, आज हम सभी ने अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय का, हमारे सभी शिक्षक साथियों का, हमारे जो मुख्य अतिथि जुड़े थे, जो एक राष्ट्रीय प्राप्त करता है, उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। पूरा समस्त केवी स्टाफ उनका धन्यवाद अदा करता है। हम इसी प्रकार से मिलजुल कर सारी प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। और अभी हमारी ये मीटिंग बच्चों जब समाप्त होगी, उसके बाद में आपके 2 कार्य करने हैं आपको। एक तो क्विज कंपटीशन, जिसके लिए अमित सर आपके साथ में लिंक शेयर करेंगे। तो आप खेल दिवस पर प्रश्नोत्तरी में पार्टिसिपेट करेंगे सभी बच्चे। और उसके बाद में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, जिसके लिए जयदेव सर आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। और दोनों प्रतियोगिताओं का जो समय है वो 30-30 मिनट है। उसके तुरंत बाद हमारी नियमित रूप से क्लासें लगेंगी, जो भी टाइम टेबल है उसके अनुसार। तो अभी हम मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। प्राचार्य महोदय से मैं अनुमति चाहूँगा, कृपया मीटिंग खत्म करने की घोषणा करें। जी हाँ जी, बिल्कुल। सभी बच्चों आगे पार्टिसिपेट जो भी एक्टिविटीज बताई हैं उसमें करिए। और 11 बजे तक हमारा ये वेबिनार चल रहा है, उसके बाद हमारी रूटीन क्लासेस होंगी। आप लोग सभी लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, धन्यवाद। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय।